اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آفتاب عالم کے تیسرے پارٹ کے بعد آج چوتھے پارٹ کی شروعات آپ کی دعاؤں کی برکت سے کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ بھی پارٹ بہت پسند آئے گا۔ تیسرے پارٹ میں ابرسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں بیان فرما رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا، سنو، اس رات کو صبح صادق کے وقت وہ ہستی عالم وجود میں آئی جو ہمارے معبودوں کو تذلیل و وحانت کے علمبردار ہوگی۔ صرف ایک انسان، نہایت مستقل مزاج اور حلیم انسان اس روز پیدا ہوا۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال کی ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریریں کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خوب رو، دل لگا کر رو، ہمارے یہ معبود بھی ہم سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ دنیا اندیکھے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ تمام عرب اس دباؤ سے متاثر ہوگا۔ کیسا ناقص زمانہ ہوگا۔ ابرسن کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو لہب نے کہا، مقدس حبل کی قسم، میں ہر اس شخص کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گا۔ ابرس نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، مگر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، اپنے معبودوں کی تذلیل دیکھو گے۔ حمزہ نے دریافت کیا، کیا کوئی تدبیر اس بلا سے بچنے کی بھی ہے یا نہیں؟ ابرس نے جواب دیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس کی ورینیاں مخالفتیں چھوڑ دو، تمام قبیلے متفق و متحد ہو جاؤ، شیر و شکر کی طرح مل جاؤ اور عہد کرو کہ خدا کو ماننے والے کی مل کر پرجور مخالفت کریں گے۔ وہ کوئی شخص ہو، کسی قبیلہ کا ہو، اس کی اعزا رسائی میں کوتاہی نہ کرو گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالو گے۔ اس زمانہ میں عرب میں چند قبائل بہت زیادہ معزز متفخر سمجھے جاتے تھے، جیسے یاز، ربیہ، مضر قبیلہ، مضر کو قریش بھی کہتے تھے۔ قریش کے بھی کئی قبیلے تھے۔ ان قبائل میں بنی سہم، بنی فخر، اہم، بنی زہرہ، بنی عدی، بنی ہاشم زیادہ مشہور تھے۔ یہ تمام وہ قبائل تھے جن کی تمام عرب میں دھاک تھی۔ خصوصیت کے ساتھ قبیلہ بنی ہاشم سب سے زیادہ ذی عزت سمجھا جاتا تھا، چونکہ خانہ کعبہ کا حج تمام قبائل کرتے تھے۔ ہر قبیلہ کی معبودیت الحرام میں موجود تھا۔ کعبہ مکہ میں تھا۔ مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرس کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کی معبودوں کی تذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہو تو بنی ہاشم کی دبدبہ اور اعزاز کی وجہ سے کوئی اس کی طرف دیکھ نہ سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار لینا چاہا۔
अरबों की एक यह भी खसूसियत थी कि जो अहद व इकरार वह कर लेते थे उससे पीछे ना हटते थे, ख्वाह उनमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों न हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वह अपने माबूदों को बुरा कहने वाले को कत्ल किए बगैर न छोड़ेंगे, ख्वाह वह किसी कबीला से हो। सब के बाद अबू लहब ने कहा, मुअज़्ज़ज़ काहिन, तुम शायद कबीला बनी हाशिम की तरफ इशारा कर रहे हो। मैं अहद करता हूँ कि अगर ऐसा शख्स हमारे कबीला में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर बुलंद होगा। मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे यह खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम ही में से होगा। देखो, सब देखो, उसका नाम भी इस खोपड़ी पर है। मौज़मा की तरफ थोड़े थोड़े वक्फा से चारों तरफ घुमाने लगा। सब ने देखा खोपड़ी पर जली कलम से नाम नामी और इस्म गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। सब इस मंजर नाम को, इस मुअज़्ज़ज़ मुतफ़क्किर इस्म को देखकर हैरान रह गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फर्जंद अर्जुमंद अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब के हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजा थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 ईस्वी आमुल कत्ल दोशंबा बाद अज सुबह आफ्ताब क़िब्ल अज तुलू पैदा हुए थे। आपका सन मुबारक पूरे 40 वर्ष का था। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आप खामोश, मतीन, मुतहम्मिल, मुस्तकिल मिजाज, रास्तगो, अमीन, दियानतदार थे। बहुत कम गुफ्तगू करते थे, अक्सर खाना नशीन रहते थे। कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई रोज़ वहाँ रहते, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी बात न हुई थी जिनसे लोग यह गुमान कर सकते कि बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आपके वालिद माजिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आपका सन मुबारक 6 साल को पहुंचा तो आपकी वालिदा आमिना ने भी दाई अज़ल को लब्बैक कहा। इस तरह सगीर सनी ही में वालिद की आगोश मोहब्बत और वालिदा की आगोश शफ़क़त का ख़ात्मा हो गया था। वालिदैन की वफ़ात के बाद आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे, लेकिन खुदाए क़ुद्दूस को यह दिखाना मकसूद था कि लवारिस, यतीम, दिलेर, नौनिहाल सिर्फ आगोश रहमत में परवरिश पाकर बाम उरूज पर आफ्ताब बनकर चमके। इसलिए जब आपकी उम्र 8 बरस 2 महीने 10 दिन की हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रहलत फरमा गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वाली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुँचे। यूँ तो तमाम हुज़्ज़ाज़ और सारा अरब आपकी खुश अखलाक़ी, खुश मुआमलगी, दियानत व अमानत का कायल था, लेकिन सबसे ज़्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरश, क्या तुम मेरे प्यारे भतीजा पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? कभी ऐसा न करो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरश ने कहा, हुजूर, मैं मुक़द्दस हबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से न कुछ कह रहा हूँ न कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के ज़रिए से मुझे बता रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे ख़ानदान से कोई बुग़्ज़ व कीना है। इस दुश्मनी को
गैबदानी के पर्दा में निकाल रहे हो। अबरश ने आज़िज़ाना अंदाज़ से कहा, ए खुदावंद मक्का, मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं हुजूर के ख़ानदान पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं। मैं हुजूर के ख़ानदान का परवरदा हूँ, नमकख्वार हूँ। मेरे दिलो दिमाग में दुश्मनी का ख्याल भी नहीं आ सकता। एक अरब कभी नमक हराम और गद्दार नहीं बन सकता। ज़रा तहम्मुल कीजिए और देखिए खोपरी पे क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरश ने कहा, खोपरी को चरख दिया, इस कदर घुमाया कि वह गोल दायरा से सिर्फ एक नुक्ता बनकर रह गई। अबरश ने कहा, देखिए खोपरी एक नुक्ता बनकर रह गई है, मगर देखिए और गौर से देखिए, यह नुक्ता खुदाओं की तजलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगा। सब ने नुक्ता को गौर से देखा। नुक्ता फैलने लगा, फैलते फैलते नाम बना और निहायत ताब व ताब से चमकने लगा। सब ने देखा, गौर से देखा, हैरत से देखा। साफ और मोटे हरूफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। अबरश ने कहा, देख तो गौर से देख लो, अपने माबूदों को तजलील करने वाले का नाम देख लो। कोई जादू न था, कोई नज़रबंदी न थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ और वाज़ेह तौर पर चमक रहा था। अब अबू तालिब को भी कुछ कहने की गुंजाइश न रही। अबरश ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो। अगर तुम अपने माबूदों को खुश करो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाए। अबू लहब ने दरियाफ्त किया, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरश ने कहा, यह खोपरी जवाब देगी। खोपरी अभी तक गर्दिश कर रही थी, अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ नुक्ता ही बाकी रह गया था। लोग उस नुक्ता को गौर भरी नज़रों से देख रहे थे। नुक्ता फिर फैलना शुरू हुआ और देखते ही देखते एक लफ्ज़ बन गया। सब ने पढ़ा। चमकदार अल्फाज में तहरीर था, कुर्बानी। अबरश ने कहा, कुर्बानी देकर अपने माबूदों को राज़ी करो। इस वक्त तमाम अरबों के चेहरों से खौफ व हरास जाहिर हो रहा था। सब खौफज़दा नज़रों से अबरशन को देखने लगे। अबरशन ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितना से खलासी हासिल करो। उमर अबरशन के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कुर्बानी दें हम? अबरशन ने कहा, इसका जवाब भी खोपरी ही देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपरी के तरफ उठ गईं। उन्होंने देखा कि कुर्बानी का लफ्ज़ सिमट कर फिर नुक्ता बन गया। खोपरी बराबर गर्दिश कर रही थी और वह सिर्फ नुक्ता मालूम कर रही थी। नुक्ता फिर बढ़ने लगा और बढ़कर दूर तक फैल गया। लोगों की खौफज़दा निगाहें यह सब कुछ देख रही थी। दफतन मोटे अल्फाज की इबारत नज़र आई। लिखा था कि एक 10 साला खूबरू लड़की। सब यह देखकर कमाल मुतअज्जब हुए। अबरश ने कहा, आपने देख लिया, अब खोपरी अपनी गर्दिश ख़त्म करती है। अबरश के देखते ही लफ्ज़ सिमट कर गायब हो गया और खोपरी अबरश के हाथ आ पड़ी। अबरश ने खोपरी को बोसा दिया और लोगों से मुखातिब होकर कहा, मेरे इल्म ने मुझे बताया है कि वह शख्स अपनी लड़की की कुर्बानी करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दरगोर कर चुका हो। अरबों में दख्तरकशी की मज़मूम और वहशियाना रस्म जारी था। संगदिल और बेदर्द बाप अपनी गोशा जिगर मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और उस पर बड़ा फ़ख्र करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती थी या जिंदा दफन कर दी जाती, मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड्ढा खोदता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे
देता। लड़की चीखती, मन्नत और खुशामद करती, मगर जालिम बाप उसकी आवाज़ जारी पर ज़रा तवज्जो न करता और ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह से अपने लख्त जिगर को जिंदा दरगोश करके वापस लौट जाता और इस संग दिलाना रस्म पर बड़ा फ़ख्र करता। अबरस की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का शख्स बोला, आज मैं फ़ख्रिया तौर पर कहता हूँ कि मैं अपने लड़कियों को जिंदा दरगोर कर चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरे 10वीं लड़की मौजूद है, उसकी उम्र परसों पूरे 10 वर्ष की हो जाएगी। मैंने मन्नत मान रखी थी कि जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाए तब उसे दफन करूँगा। अबरस ने कहा, वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है। अबरस ने उस अराबी को देखकर कहा, कैस तुम वाकई खुशकिस्मत हो। किस कदर काबिल फ़ख्र बात है कि तुम अपनी 10 साला लड़की को ज़िंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारी इस बख्त रशानी पर एक दुनिया रश्क करेगी। कैस बिन आसिम कबीला बनी हासिम से था। वह ऐसा संग दिल था कि उसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया था और कभी उसकी पिसानी पर बल तक न आया था। उसने कहा, मैं नहायत खुशी से ऐलान करता हूँ कि परसों मैं अपनी 10 साला लड़की को जिंदा दफन करूँगा। अबरस ने कहा, तमाम अराबी इस अजीमुश्शान कुर्बानी का नज़ारा देखने के लिए परसों बस्ती से बाहर जमा हों। इस कुर्बानी के बाद कोई अंदेशा बाकी न रहेगा। यह सुनकर लोगों की तसल्ली हो गई। सब के सब अपने माबूदों के सामने एक मर्तबा फिर सजदा में गिरे और सजदा करके उठे और बैतुल हराम से निकल कर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। अबू लहब भी लंगड़ाता हुआ चला। कैस बिन आसिम भी रवाना हुआ। थोड़ी देर में बैतुल हराम लोगों से खाली हो गया। 5वां बाब में एक संगदिल बाप अपने बेटी की कुर्बानी जिंदा दफन करके कैसे करता है, उसे अगले पार्ट में ज़रूर देखें।